In the last lecture, we have derived the equations of displacement, velocity and acceleration in SHM. इस लेक्चर में we will be studying graphical representation of SHM. बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. ये इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, which is displacement for a particle performing SHM. So here x is displacement, a is amplitude, omega is angular frequency, t is time and phi is called phase constant or it is also called as epoch. इस इक्वेशन को अब हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, राइट? सो इफ वी से दैट द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, तो अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो वी कैन डेफिनेटली से दैट डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी जीरो, बिकॉज पार्टिकल मीन पोजीशन पर है एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग मीन पोजीशन से ही मेजर करते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो एंड द पार्टिकल इज जस्ट स्टार्टिंग इट्स मोशन, सो वी कैन ऑल्सो से टाइम इज इक्वल टू जीरो. नाउ लेट अस ट्राई टू सब्स्टिट्यूट दीज टू कंडीशंस इन दिस इक्वेशन, तो अपने को एक फाई का आंसर मिल जाएगा, राइट? सो विल पुट x इक्वल टू जीरो equal to a sine of 0 plus phi, right? Because omega into 0 वो 0 हो जाएगा. 0 upon a will again be 0, so we are left with 0 equal to sine phi. तो यहाँ से हम लोग phi का values find कर सकते हैं. The very first value will be 0 because we all know sine 0 is equal to 0. But ये जो sine function है, it is a periodic function, it repeats itself. And it repeats itself after pi intervals, right? So 0, pi, 2 pi and so on. These are the possible values of phi. So let us consider the first value and उसको original equation में substitute कर देते हैं. तो if we replace phi by 0, then what are we going to get? We will get x equal to a sine of omega t. राइट? सो व्हेनेवर क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, तो वी विल डायरेक्टली यूज दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t. अगर जीरो सब्स्टिट्यूट नहीं करते, पाई सब्स्टिट्यूट करते, तो इक्वेशन आता है a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई. बट अगेन वो प्रॉपर्टी है, सबको पता है, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई इज नथिंग बट साइन थीटा, राइट? सो अगेन ये इक्वेशन आने वाला है. So whenever we know that the particle is starting from mean, we will directly use this equation. Now let us talk about extreme position. Now if the particle is starting from extreme positions, उसका displacement will be plus or minus a, right? अगर right extreme पर है तो it will be plus a, left extreme पर है तो it will be minus a, right? And again it is just starting its motion. So we can also substitute time is equal to 0. Again same दोनों values इसमें substitute करके phi का आंसर निकालना है, right? So we can write plus or minus a is equal to a sine of omega t plus phi. But again t is 0, तो ये वाला term 0 हो जाएगा. Omega into 0 will become 0. प्लस एंड माइनस है, तो वी आर लेफ्ट विथ प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू साइन फाई, राइट? तो अब यहां से फाई के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है? फर्स्ट वैल्यू विल बी पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज प्लस 1. देन वी नो साइन 3 पाई बाय 2 इज माइनस 1. फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगा 5 पाई बाय 2 and these values will keep on continuing, right? तो इसमें से again let us consider the first value which is pi by 2. ये pi by 2 original equation में put करते हैं, तो what will we get? We are getting x equal to a sine of omega t plus pi by 2. Now we all know this property, sine of pi by 2 plus theta is cos theta, right? So we can write therefore x is equal to a cos of omega t. So whenever it is mentioned in the question that the particle is starting from extreme position, we will use x equal to a cos omega t.
whenever it is mentioned कि पार्टिकल मीन से स्टार्ट कर रहा है, we will use x equal to a sin omega t. एंड इसको याद रखने का एक इजी लॉजिकल ट्रिक है. लॉजिक ऐसा है, यहाँ पे साइन फंक्शन है एंड साइन का ग्राफ सबको पता होगा, राइट? साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है. दिस इज हाउ द साइन ग्राफ लुक्स, राइट? एंड इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. तो साइन का ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंट्रल पोजिशन, राइट? तो आप ऐसा समझ सकते हो, ये मीन पोजिशन है, ये एक एक्सट्रीम है, ये दूसरा एक्सट्रीम है, राइट? सो साइन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल पोजिशन. इसीलिए जब पार्टिकल मीन से स्टार्ट करता है तो यहाँ पे साइन फंक्शन आया. Whereas cos का ग्राफ starts from this point, right? If we see cos 0 comes out to be +1, right? So cos का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करता है, means it is starting from an extreme position. इसलिए when the particle is starting from extreme, यहाँ पे cos फंक्शन आएगा. Now let us begin with graphical representation of SHM. तो इसमें हम लोग को दो सब केसेस पढ़ने हैं. The first case is starting from mean position and moving to positive extremity, and the second case is starting from extreme and moving to positive extremity, right? तो उसमें से first case हम लोग ने start किया है अभी, starting from mean position and the particle is moving to the positive extremity, right? So if the particle is starting from mean, we know कि उसके displacement का equation is x equal to a sin of omega t, राइट? क्योंकि मीन पोजीशन से जब पार्टिकल स्टार्ट करता है तो उस केस में फेस कांस्टेंट इज 0, हम लोग ने जस्ट अभी देखा, राइट? सो x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी. बाय द वे ग्राफ्स हम लोग किसके प्लॉट कर रहे हैं? वी आर प्लॉटिंग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, राइट? सो वी नीड 3 इक्वेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया अपने पास. अब इसको अगर हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करें तो अपने को वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा, राइट? बिकॉज वेलोसिटी इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और फिर वेलोसिटी के इक्वेशन को और एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ जाएगा, राइट? सो दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी ऑल नो v इज इक्वल टू dx by dt, राइट? तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अब एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा. साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा, सो लिख दिया कॉस ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी विल बी ओमेगा, राइट? तो ये फाइनली क्या आया? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ये ओमेगा कॉस फंक्शन के अंदर नहीं है, वो बाहर है. सो इट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. सो दैट इज वेलोसिटी. नाउ वी नो एक्सीलरेशन इज dv by dt. मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो a कांस्टेंट है एंड ओमेगा इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कांस्टेंट. सो a ओमेगा बाहर आ गया. कॉस थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा, तो यहां पे माइनस साइन ओमेगा टी, एंड वापस ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा विच विल बी ओमेगा, राइट? सो दिस इज नथिंग बट माइनस ए ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, एंड ये क्या आया अपने को? ए ओमेगा cos omega t, right? So we have to use these equations. ये displacement वाला, ये velocity का and ये acceleration का, right? तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया. टेबल में we have time omega t. This is also called as the phase. Phase मतलब ये angle, right? So omega t, displacement, velocity and acceleration. So time को हम लोग यहाँ पे कैसे split करेंगे? जैसे ही particle अपना SHM start करता है तो उसी instant पे time will be 0. राइट? फिर जो नेक्स्ट इंटरवल हम लोग लेने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी t/4. t/4. दिस कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ SHM. ऑलराइट स्टूडेंट्स, प्लीज रिकलेक्ट टाइम पीरियड क्या था. टाइम पीरियड वाज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, राइट? तो एक ऑसिलेशन अगर मीन से स्टार्ट करता है तो वो राइट एक्सट्रीम पे जाएगा, वापस मीन पे आएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा, वापस मीन पे आएगा. दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन.
तो ये पूरे टाइम पीरियड को ना हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. कैसा पार्ट? पहले मीन पे था, सो टाइम इज 0. फिर राइट एक्सट्रीम पे जाने के लिए इट विल टेक 1/4 ऑफ द टाइम, सो 0 t/4. वापस मीन पे आने के लिए 1/4, सो t/4 तो इधर है, सो t/4 प्लस t/4, t/2 हो गया, t/2 प्लस t/4, 3t/4, 3t/4 प्लस t/4 t. तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन को हम लोग ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. 0, 1/4, हाफ, 3/4 एंड कंप्लीट. राइट, सो 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t. तो वही इंटरवल्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. 0, t/4, then t/2, then 3t/4 and then t. Right? Now ओमेगा टी का वैल्यू फाइंड करना है. दिस इज वेरी सिंपल. ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में और 12th में भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा का फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t. राइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ओमेगा. राइट, सो ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी. अगर मैं यहाँ पे टी मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे मुझे टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. राइट, सो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ टी इज 0, सो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0. तो ओमेगा टी का वैल्यू इज 0. नेक्स्ट, टी का वैल्यू t/4, सो 2π/t इंटू t/4. टी कैंसिल हो जाएगा, 2π/4 मतलब π/2 मिलेगा अपने को. राइट, सो दिस इज π/2. चाहिए तो मैं शो कर देता हूं. t/4, ये t का वैल्यू हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया, सो वी आर गेटिंग 2π/t इंटू t/4. सो ये t कैंसिल होगा एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विथ π/2. नेक्स्ट वैल्यू t/2, सो 2π/t इंटू t/2. t कैंसिल, 2 कैंसिल, ओनली पाई. तो नाउ वी कैन आइडेंटिफाई ना कि ये कौन से पैटर्न में चल रहा है. 0, π/2 पाई, मतलब डिफरेंस π/2 का है. सो द नेक्स्ट वैल्यू विल बी 3π/2 एंड द नेक्स्ट विल बी 2π. तो ये कंप्लीट साइकिल हो गया 0 से लेके 2π तक. राइट, सो अब क्या अपने को करना है ना, ये जो ओमेगा टी के वैल्यूज है ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इनके इक्वेशंस में पुट करने. देखो कैसे. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है अपने पास, तो ओमेगा टी का फर्स्ट वैल्यू इज 0. राइट, सो इक्वेशन क्या बनेगा? a sin 0 एंड वी ऑल नो sin 0 इज 0. राइट, तो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी 0. राइट, नेक्स्ट वैल्यू π/2, ये π/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो इक्वेशन क्या होगा? a sin ऑफ π/2. sin π/2 इज +1, तो यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ प्लस a बचा. राइट, सो x का वैल्यू इज +a. नेक्स्ट पाई, सो x इज इक्वल टू a sin पाई. sin पाई इज अगेन 0. राइट, सो यहाँ पे भी वापस दिस विल बी 0. नेक्स्ट वैल्यू 3π/2, सो x इक्वल टू a sin ऑफ 3π/2. sin 3π/2 होता है -1, सो -1 इंटू a विल बी -a. सो ये होगा -a. नेक्स्ट 2π, sin 2π इज अगेन 0, तो यहाँ पे भी x का वैल्यू विल बी 0. हम लोग ने कुछ नहीं किया है, बस ये जो ओमेगा टी के वैल्यूज थे वो हम लोग ने साइन के ब्रैकेट के अंदर प्लेस किया और उनके वैल्यूज निकाले. तो सेम चीज अपने को भी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के लिए करना है. सो लेट अस डू विथ वेलोसिटी. वेलोसिटी फर्स्ट एंगल 0, तो a ओमेगा cos 0. cos 0 इज +1, सो +1 इंटू a ओमेगा विल बी +a ओमेगा. सो ये फर्स्ट वैल्यू आ गया. नेक्स्ट π/2, cos π/2 कितना होता है? 0. 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये वैल्यू 0. नेक्स्ट पाई, cos pi इज -1, सो -1 इंटू a ओमेगा विल गिव अस -a ओमेगा. नेक्स्ट वैल्यू cos ऑफ 3π/2, इट विल बी अगेन 0. नेक्स्ट वैल्यू 2π, cos 2π इज अगेन +1, सो +1 इंटू a ओमेगा विल बी a ओमेगा. तो भी ये दोनों स्टेप्स ना हम लोग ने एक्चुअली सब्स्टिट्यूट करके वी फाउंड आउट द वैल्यूज. बट अब ना इसमें आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो.
पैटर्न ऐसा है, ऑल्टरनेट जीरोस आ रहे हैं एंड ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है. सी ऑल्टरनेट जीरोस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस. बट यहाँ पे अपने को पता नहीं कि पहले जीरो आएगा या पहले पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा. तो सिर्फ फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग वो ट्रेंड फॉलो कर देंगे. राइट, सो एक्सीलरेशन, फर्स्ट एंगल इज जीरो. राइट, सो जीरो आपको यहाँ पे पुट करना है एक्सीलरेशन के इक्वेशन. सो दैट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन जीरो. साइन जीरो इज जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग विल बी अगेन जीरो. तो ये वैल्यू जीरो आ गया. अब देखते हैं ये प्लस आता है कि माइनस आता है. राइट, सो ये एंगल कौन सा है, पाई बाई टू. पाई बाई टू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे. सो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई बाई टू. साइन पाई बाई टू इज 1. सो 1 इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. तो दिस वैल्यू विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. अब ऑल्टरनेट जीरो, माइनस हो गया तो अब यहाँ पे प्लस. सो दिस विल बी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर एंड वापस नेक्स्ट वैल्यू विल बी जीरो. राइट, अगर आपको चेक करना है तो आप ये सारे एंगल्स सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो, यही वैल्यूज आएंगे, ये ट्रेंड फॉलो होगा. राइट, सो अब ये जो वैल्यूज है प्लस ए माइनस ए जीरो प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इसी को अपने को यहाँ पे प्लॉट करना है. राइट, सो लेट अस बिगिन. तो हम लोग ने टाइम के इंटरवल्स कैसे बनाए हैं, 0, t/4, t/2, 3t/4, t. तो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट दैट इज 0, this is t/4, this is t/2, this is 3t/4 and this is t. तो अपन एक कंप्लीट साइकिल प्लॉट करने वाले हैं 0 से लेके t तक. आपको चाहिए तो आप और एक एक्स्ट्रा वैल्यू भी ले सकते हो. t के बाद जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी 5t/4, वो भी आप ले सकते हो, बट आई एम कीपिंग इट ओनली टिल t. राइट, सो लेट अस ट्राई टू प्लॉट दीज वैल्यूज. सो व्हेन t इज 0, व्हेन t इज 0, x का फर्स्ट वैल्यू इज 0, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट मिला अपने को. सेकेंड, व्हेन t इज t/4, x इज प्लस a. प्लस a मतलब यहाँ पे कहीं तो लाई करेगा प्लस a ऊपर वाले साइड पे. एंड व्हेन t इज t/4, x इज प्लस a, तो ये पॉइंट. राइट, नेक्स्ट t/2 पे अगेन 0. देन नेक्स्ट वैल्यू है माइनस a. तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, लेटर से दिस इज माइनस a एंड यहाँ पे आई एम प्लॉटिंग माइनस a. एंड नेक्स्ट वैल्यू इज अगेन 0. राइट, सो इसको भी, ये पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन से या कर्व से. तो इसके इक्वेशन देखो, इट इज अ साइन फंक्शन एंड साइन फंक्शन कर्व्ड होता है. राइट, सो दिस विल बी समवॉट लाइक अ साइनोसॉइडल ग्राफ. राइट, सो दिस इज द ग्राफ फॉर डिस्प्लेसमेंट. वैसे ही अपने को अभी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए प्लॉट करना है. So velocity is starting from plus a omega. Plus a omega मतलब यहाँ से start कर रहा है. So this is our first point. Then 0, then minus, then 0. So देखो यहाँ पे वापस 0 पे. अच्छा, I'll write this time 0, t/4, t/2, 3t/4 and t. ये तो सेम ही रहेगा, वो टाइम तो सेम रहेगा. So plus a omega 0. Then let us say this is minus a omega, so वो यहाँ पे आएगा. Then again 3t/4 पे again it is 0 and then again it is going to positive extremity. तो इसका ग्राफ कैसे चलेगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. So this will be something like this. Right, so this is the curve of velocity. And last curve, acceleration, again this is going to be 0. This will be t/4, t/2, 3t/4 and t. अब इसके प्लॉट करते हैं वैल्यूज. दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड माइनस पे जा रहा है. तो फर्स्ट पॉइंट 0 है. देन नेक्स्ट इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर. सो आई राइट दिस एज माइनस a ओमेगा स्क्वायर और ऊपर प्लस a ओमेगा स्क्वायर. राइट, सो फर्स्ट वैल्यू माइनस है. देन अगेन इट इज गोइंग टू 0. then it is going to positive extremity and again 0. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ will be something like this. Alright, so this is the curve for acceleration. अब इसको याद रखने का भी एक इजी ट्रिक है. डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में पॉजिटिव साइन फंक्शन है,
तो इसका ग्राफ विल बी सिमिलर टू साइन फंक्शन का ग्राफ. साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही दिखता है. वेलोसिटी इज पॉजिटिव कॉस फंक्शन. पॉजिटिव कॉस फंक्शन ऐसे दिखता है, ऊपर से स्टार्ट होता है. एंड एक्सीलरेशन इज माइनस ऑफ साइन फंक्शन, मतलब नेगेटिव साइन फंक्शन है. पॉजिटिव साइन फंक्शन ऊपर से स्टार्ट होता है, राइट, मतलब सेंटर से स्टार्ट होके ऊपर जाता है. सो नेगेटिव साइन फंक्शन सेंटर से स्टार्ट होके नीचे जाएगा. सो दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर कि ये ग्राफ्स कैसे दिखने वाले. मतलब इन शॉर्ट आप बिना वैल्यूज फाइंड किए भी आप ये ग्राफ जल्दी से बना सकते हो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम पड़ेगा, राइट. क्या ट्रिक बोला मैंने? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइन फंक्शन, तो सीधा साइन का ग्राफ. वेलोसिटी पॉजिटिव कॉस फंक्शन, तो कॉस फंक्शन का ग्राफ. एक्सीलरेशन नेगेटिव साइन फंक्शन, तो नेगेटिव साइन फंक्शन का ग्राफ. ऑलराइट, सो दिस वाज द फर्स्ट केस स्टार्टिंग फ्रॉम मीन एंड मूविंग टू पॉजिटिव एक्सट्रीम. अब सेकंड केस देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम एंड मूविंग टू पॉजिटिव एंड मूविंग टुवर्ड्स मीन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सेकंड केस where the particle is starting from its extreme position, right? So we all know जब भी particle extreme से start करेगा तो उसका equation will be x equal to a cos of omega t, right? क्योंकि extreme के लिए phase constant का value is pi by 2. So sin of pi by 2 plus theta उसको convert करके हमने cos theta लिखा है, which is cos omega t, right? So this is displacement. So again velocity is derivative of displacement with respect to time. Again a constant है तो a बाहर आ जाएगा. cos theta का डेरिवेटिव is minus sin theta and again omega t का डेरिवेटिव with respect to t will be omega, right? तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है? minus a omega sin omega t. So this is velocity. इसको और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वी विल गेट एक्सीलरेशन विच इज dv by dt माइनस ए ओमेगा, वो तो कांस्टेंट है तो माइनस ए ओमेगा कांस्टेंट. साइन थीटा का डेरिवेटिव इज cos थीटा, सो दिस विल बी cos ओमेगा टी इनटू वापस ओमेगा टी का डेरिवेटिव विल बी ओमेगा. तो इन शॉर्ट ये क्या बन रहा है? माइनस a omega square cos omega t. So we got the equations for displacement which is a cos omega t, velocity and acceleration, right? अब वापस सेम टेबल. अब इस टेबल में t एंड ओमेगा t के वैल्यूज तो चेंज नहीं होंगे, राइट, बिकॉज टाइम पीरियड को हम लोग वैसे ही ब्रेक करेंगे. अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो यहां से 0 कंसिडर करेंगे. 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t, वैसा. सो 0, t/4, t/2, 3t/4 t. एंड अकॉर्डिंगली जैसे हम लोग ने वो कैलकुलेट किया था, ओमेगा t इज इक्वल टू 2π/t इंटू t. ऐसे हम लोग ने ओमेगा t के वैल्यूज फाइंड किए थे t के अलग अलग वैल्यूज पुट करके, तो वो वैल्यूज भी सेम आने वाला है. सो नाउ लेट अस फाइंड दीज वैल्यूज. डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट एंगल है 0, तो अब ये इक्वेशन पर फोकस करो, इसमें 0 पुट करो. cos 0 is +1, सो पहला वैल्यू है +a. नेक्स्ट π/2, cos π/2 is 0 into anything is 0, तो ये वापस 0, राइट. नेक्स्ट पाई, cos pi is -1, so -1 into a will be again -a. नेक्स्ट 3π/2, cos 3π/2 is again 0, तो ये भी 0 हो गया. 2π, cos 2π is +1, so +1 into a will be +a. तो यहाँ पे भी देखो वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ऑल्टरनेट जीरोस एंड ऑल्टरनेट प्लस माइनस, राइट. सो v के लिए देखते हैं. अभी फर्स्ट एंगल इज 0, सो साइन 0 क्या होगा? 0, सो 0 into anything will be 0, तो यहाँ पे 0. नेक्स्ट π/2, साइन π/2 is +1, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, सो -a ओमेगा विल बी द वैल्यू. सो यहाँ पे आ गया -a ओमेगा. अगेन सेम ट्रेंड फॉलो होगा, ऑल्टरनेट 0 एंड ऑल्टरनेट प्लस माइनस. आप चाहिए तो एक्चुअल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, यही आंसर आएंगे आपको, राइट. नेक्स्ट एक्सीलरेशन. सो एक्सीलरेशन का इक्वेशन ये है, फर्स्ट एंगल इज 0, cos 0
इज 1, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इज द फर्स्ट वैल्यू फॉर एक्सीलरेशन. सो माइनस आया तो नेक्स्ट वैल्यू 0 आएगा, देन ऑल्टरनेट प्लस माइनस एंड ऑल्टरनेट जीरोस. सो अगेन दिस विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. आई होप सबको समझा है ये ट्रेंड कैसे फॉलो हो रहा है. ऑल्टरनेट जीरोस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, राइट. आप कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हो. समझो मुझे ये चेक करना है, तो इसको कैसे चेक करोगे? ये पाई है एंड एक्सीलरेशन का वैल्यू है, तो इसमें पुट करो cos पाई इज -1, -1 into minus a omega square will give you plus a omega square. So those values are correct. Now let us plot these values again on the graph. So again same displacement, velocity, acceleration और उनके maximum minimum values, right? So let us start with displacement. It is starting from plus a, 0, minus a, 0, plus a. तो plus a से start कर रहा है, मतलब यहाँ से फिर 0, then minus a, then 0, then again plus a. इसको भी रिमेंबर करने का ट्रिक है, वो मैं बताता हूँ. पहले अपन एक्चुअली प्लॉट कर लेते हैं. नेक्स्ट वेलोसिटी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग टू माइनस ए ओमेगा. सो वेलोसिटी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग टू माइनस ए ओमेगा. तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, राइट. यहाँ पे प्लस ए ओमेगा होगा, प्लस ए ओमेगा एट 3t/4, 3t/4 पे प्लस ए ओमेगा. नेक्स्ट एक्सीलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से स्टार्ट होके 0 पे जा रहा है. सो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से स्टार्ट होके इट इज गोइंग टू 0 एंड देन अगेन इट विल गो टू पॉजिटिव. तो ये ऐसा होगा ग्राफ, राइट. दिस विल बी द ग्राफ. अब इसको कैसे आप याद रख सकते हो? ट्रिक क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव कॉस फंक्शन. पॉजिटिव कॉस फंक्शन ऊपर से स्टार्ट होता है, तो ऐसा ग्राफ बना दिया. वेलोसिटी इज नेगेटिव साइन फंक्शन. नेगेटिव साइन फंक्शन, साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है तो वो ऊपर जाता है, राइट. बट उसका उल्टा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव साइन फंक्शन. एक्सीलरेशन इज नेगेटिव कॉस फंक्शन. पॉजिटिव कॉस फंक्शन ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, तो नेगेटिव कॉस फंक्शन नीचे से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा, राइट. तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर कि ये ग्राफ्स का नेचर कैसे होगा. अब इन ग्राफ्स का थोड़ा अपने को कंक्लूजन स्टडी करना है. 3-4 पॉइंट्स बस वी हैव टू स्टडी. First point, displacement, velocity and acceleration are periodic functions of time. I'll repeat. Displacement, velocity and acceleration are periodic functions of time. Periodic function मतलब क्या? अपने आप को repeat कर रहे हैं after specific interval of time, right? So देखो ये इनका एक interval हो गया. After this it will again keep on repeating itself, right? तो first point मैंने क्या बोला? Displacement, velocity and acceleration are periodic functions of time and the time period is t, right? So the time period is t. Second point, there is a phase difference of pi/2 between displacement and velocity. I'll repeat, there is a phase difference of pi/2 between displacement and velocity. देखो displacement का ग्राफ is starting from this extreme and velocity का ग्राफ is starting from me. मतलब देखो 1/4 इंटरवल के बाद जिधर डिस्प्लेसमेंट है वहां से वेलोसिटी स्टार्ट हो रहा है. मतलब अगर आप ये 1/4 पार्ट निकाल दो तो देखो दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी का ग्राफ ओनली, राइट. वही नेचर है. तो इन दोनों में there is a phase difference of pi/2. Now what do we mean by phase difference? Phase difference मतलब एंगल का डिफरेंस. देखो यहाँ पे हम लोगों ने टाइम प्लॉट किया है, राइट. अगर हम लोग टाइम नहीं प्लॉट करते और इंस्टेड ओमेगा टी प्लॉट करते तो वैल्यूज क्या आता? 0, pi/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, ऐसे वैल्यूज आते, राइट. सो इधर वैल्यूज होता है 0, आई राइट डाउन. यहाँ पे वैल्यूज होता है 0, यहाँ पे होता है pi/2, राइट. ऐसे वैल्यूज होंगे. अगेन यहाँ पे इट विल बी 0 एंड यहाँ पे इट विल बी pi/2. अब ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू pi/2 पे है वही वैल्यू वेलोसिटी का 0 पे है, राइट. तो इन दोनों में एंगल का फर्क कितने का हुआ? एंगल का फर्क pi/2 का हुआ. इसी एंगल के फर्क को हम लोग फेज डिफरेंस बोलते हैं, राइट. So displacement and velocity
have a phase difference of pi by 2. Next point, velocity and acceleration again have a phase difference of pi by 2. देखो कैसे, ये वैल्यू 0 होगा एंड ये वैल्यू वापस pi by 2 होगा. तो देखो इसका जो वैल्यू 0 पर है, एक्सीलरेशन का वही वैल्यू pi by 2 पर है. अगेन द वैल्यू डिफरेंस इज pi by 2. तो अगेन इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस इज ऑफ pi by 2. तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था, displacement, velocity and acceleration are periodic functions of time. Second point, there is a phase difference of pi by 2 between displacement and velocity. Third point, there is a phase difference of pi by 2 between velocity and acceleration. And now the last point, there is a phase difference of pi between displacement and acceleration. pi का phase difference, देखो कैसे pi का phase difference, ये दोनों ग्राफ्स पर फोकस करो आप, राइट. दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम और इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम कहाँ पे आ रहा है, t by 2 पे आ रहा है. तो अगर मैं उसको एंगल में कन्वर्ट करूं, t by 2 वाला एंगल मतलब इट इज पाई, राइट. सो दिस एंगल इज पाई. सो जो वैल्यू इसका 0 पे था, सेम वैल्यू इसका पाई पर है. तो दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, पाई का डिफरेंस हुआ. सो वी कैन से देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन डिस्प्लेसमेंट